Pakistan's economy. It's not going to be an easy task for Imran Khan. He will need to take some urgent steps to prevent a potential collapse of the economy. یہ ساری جو 10 ڈیمز 10 بن رہی ہیں یہ 2018 میں شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ 2028 میں یہ پوری ہو. تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی گرڈ میں سستی بجلی اور صاف بجلی جو ہمارے ملک میں ملے گی، اس سے صرف لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو ہوگا سستی بجلی کا. کورونا کے باوجود سی پیک کے منصوبوں پر کام بتدریج آگے بڑھا. وزیر اعظم عمران خان کی چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات میں گفتگو. مجھے سب سے پہلے تو آج خوشی ہے کہ K2 جو چائنا اور پاکستان کی کوپریشن سے یہ جو K2 کی آج ہم انوگریشن کر رہے ہیں 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، 1100 میگا واٹ کلین انرجی پیدا کرے گا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک بھر میں 10 ارب درخت لگائیں گے اور پورے ملک میں پلانٹ فار پاکستان شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. وزیر اعظم کا پاکستان کو ماحول دوست ملک بنانے کے لیے ایک اور انقلابی پلان تیار. وفاقی حکومت نے پاکستان کی پہلی الیکٹریکل وہیکل پالیسی تیار کر لی ہے. یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑیں گی، گاڑیاں لانی پڑیں گی، موٹر سائیکل، سب سے زیادہ موٹر سائیکلز کیونکہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کریکولم ہوگا اور ایک طرف ایک ڈائریکشن پہ ملک جائے گا، ہمارے نوجوان جائیں گے، وہ ہے اصل آزادی کا راستہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8، 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کریں گے. پروگرام کے تحت نوجوانوں کو 10,000 سے 50 لاکھ تک کا قرض، کاروبار، اعلیٰ تعلیم اور ہنر کے مواقع دیے جائیں گے. اس قرض کی مدد سے وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے اور ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے. جب کورونا وبا آئی تو ہم پاکستان کی آدھی آبادی کو 12,000 روپے کی گرانٹ دینے میں مصروف تھے، دن رات مصروف تھے. جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم 12,000 روپے دیتے تھے، جو 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں، اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا. احساس راشن، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جا کے 30% ڈسکاؤنٹ لے لیں، یعنی 30% کم پہ ان کو ملیں گی اگر وہ ہماری احساس راشن کے اندر رجسٹرڈ ہیں، جو کہ 2 کروڑ خاندان ہیں. اور پھر احساس یہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے، ہر خاندان کو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ ملے گا جو کہ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے. ہم نے تیز رفتاری سے اساس نشو و نما کی داغ بیل رکھی، 50 سینٹر کھولے، اس کی ایویلیویشن کی، اور اب ہم اسی مالی سال میں پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں اساس نشو و نما سینٹر کھول رہے ہیں. وزیر اعظم سال کے پہلے دن ماڈل لنگر خانہ پناہ گاہ کا افتتاح کریں گے. کہ سردیوں کے اندر یہاں بیچارے لوگ سڑکوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. میری جو سوچ وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جو آج ماڈل بنایا ہے یہ ریپلیکیٹ ہوگا ساری جگہ. اور اس کی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ نے ان کو ڈگنیٹی دینی ہے لوگوں کو. 112 لنگر یہ پہلے فیز میں، اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہر ان علاقوں کے اندر جدھر لوگوں کو، جدھر بھوک ہے، جدھر مزدور ہے، روزگار نہیں مل رہا، ہر ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ایکسپینڈ کرتے جائیں گے لنگر. کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ موبائل گاڑیاں مخصوص جگہوں پر کھانا فراہم کریں گی، ٹرک 3 وقت کا کھانا پہنچائیں گے. پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے، تو احساس تعلیمی وظائف جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں واپس لانے کا ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے. پھر ہم نے اسکالرشپس کا میں آپ کو بتا دوں 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس، اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں. جو گریجویٹس ہیں، جس نے BA کی ہوئی ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے. 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے. ایک گھر میں اگر شہر میں ہے تو 5 لاکھ روپیہ سود کے بغیر قرضہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے. اگر دیہات میں ہے تو 3.5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ کسان اپنی زمین پہ لگائے، اور 20 لاکھ سود کے بغیر قرضہ اپنا گھر بنانے کے لیے. اور پھر ایک اسی خاندان میں اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے تاکہ وہ ہنر سیکھے، اپنے لیے کما سکے گھر پہ. اور اب تک ہم جتنا پیسہ دے چکے ہیں میرے خیال میں 2.5 ارب ہے. ہم جو
आगे देने जा रहे हैं पैसा, 1000 अरब रुपए के कर्जे देंगे यही 45 लाख खानदानों को, और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। और फिर मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास टैक्स बढ़ती जाएगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम और मदद करें इस तबके की जो इस वक्त महंगाई की लपेट। वर्ल्ड बैंक ने एहसास प्रोग्राम को समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्राम्स की फहरिस्त में शामिल किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानिया निश्तर और एहसास टीम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा इंतखाबी अमल चाहते हैं जिसे हारने और जीतने वाले दोनों कबूल करें। पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे, तो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सके। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारिफ करवाने की मंजूरी दे दी है। पिछले 1 साल में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आज रोशन अपना घर स्कीम का इजरा करेंगे। रोशन अपना घर, एक आदमी काम करने बाहर जाता है, पैसे बनाता है, मजदूर भी हो, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान में घर बनाया जाए। उसके लिए उनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो कब्जे ग्रुप बैठे हुए हैं, तो कम से कम अब इनको ये पता चल जाएगा कि बैंक की पीछे गारंटी है, और फिर वो बैंक से कर्जे भी ले सकेंगे घर बनाने के लिए। और मेरे ख्याल में ये एक वाकई जिस तरह बात की गई गेम चेंजर है, क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकेंगे जिसकी पाकिस्तान को शदीद जरूरत है, डॉलर्स की। ओवरसीज पाकिस्तानीज की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो आपने 2 रोशन अपनी कार और जो रोशन समाजी खिदमत, ये जो 2 आपने और प्रोडक्ट्स दिए हैं, इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। या पाकिस्तान सर्टिफिकेट, ये इनिशिएटिव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उन पाकिस्तानियों को एक मौका दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में पैसा भी अपना ला सकते हैं, उनको रिटर्न्स भी अच्छी मिल सकती हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने मुल्क की मदद कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम इक़दाम, अब दीनी और दुनियावी तालीम साथ साथ मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सुहावा में 500 केनाल पर मुश्तमिल अल-कादिर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स जो दुनिया में होते हैं, उन सबको बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि अपनी कौम को एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दूं अल-कादिर यूनिवर्सिटी से कि जो लोगों को समझ तो आए कि अल्लाह ने क्यों हमें पैदा किया, हमारा इस दुनिया में मकसद क्या है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। मैं इंशाल्लाह कल आगाज कर रहा हूँ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का। मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी क्यों बनाई थी कि हम सब अपने आप को कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, लेकिन आशिक रसूल हैं तो उसको साबित आप ऐसे कर सकते हैं कि उनकी सीरत पे चले, उनके रास्ते पे चले, उनका रास्ता किधर है, कौम किस तरफ जा रही है। और सिर्फ मेरा मकसद ये है हमारे बच्चे को समझ आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, सीरत नबी क्या थी। और इसके साथ साथ जो हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। There are 1.3 billion Muslims in this world. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Hijab is some sort of a weapon. It's become an issue in some countries. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he is ridiculed, when he is insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान की मुतारिफ करवाई गई OIC की करारदाद मंजूर कर ली है। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर दुनिया को दरपेश इस्लामोफोबिया का संगीन चैलेंज तस्लीम कर लिया। अगला चैलेंज इस तारीखी करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। मेहमान पाकिस्तान मेज़बान इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस का आगाज। दुनिया भर से इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के मेहमान। कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल, इस्लामोफोबिया और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। 100 से ज़ायद करारदातें ज़ेर बहस आएंगी। OIC चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल हो गई। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें हम करेंगे क्या?
क्या क्या चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला, पानी का मसला। 26 करोड़ गैलन यौमिया की पानी की स्कीम K4 जो 1/2 से ज्यादा इल्तवा का शिकार थी, फरवरी 2022 में इस मंसूबे के ऊपर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये निस्फ मुकम्मल होकर छोड़ दिया गया था। दूसरा इशू नालों का है कि गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, जिसके ऊपर आज तक किसी हुकूमतों ने काम नहीं किए। 34 अरब रुपए सिर्फ नालों की डेवलपमेंट के ऊपर दिए। ट्रांसपोर्ट, वो ग्रीन लाइन का मंसूबा जो सालों से, जिसका कहा जा रहा था कि जी हमारे बच्चों के बच्चे इस्तेमाल करेंगे इस मंसूबे को, वो उसने अपनी हुकूमत ने बना के तैयार करके आवाम के लिए छोड़ दिया। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है और 300 अरब रुपए जारी कर दिए, उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। फ्रेट ट्रेन 70 अरब रुपए, पोर्ट से जितना सामान निकलता है पीपरी की तरफ जाता है कि रात को 12 बजे के बाद जो है वो कंटेनर चलाए जाते हैं और उसके बाद फिर चलती है। तो ये एक बड़ा मसला था जिसको खान साहब की गवर्नमेंट ने हल करवा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगला PSL पूरा पाकिस्तान में होगा। कहा कि आज पाकिस्तान महफूज है, मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बहुत बेहतर है। हमने अगला जो PSL है पाकिस्तान, सारा वो पाकिस्तान में होगा, बजाय कि दुबई में होगा। काफ़ी मायूसियाँ हो चुकी हैं। इंशाल्लाह जो अगला वर्ल्ड कप में आप जो पाकिस्तानी टीम देखेंगे, अभी मेरे ये लफ्ज़ याद रखना कि वो टीम बिल्कुल एक ऐसी प्रोफेशनल टीम आपको लेके आएंगे, ग्राउंड के अंदर बेस्ट टीम लेके आएंगे और सिस्टम ठीक करेंगे, निज़ाम को ठीक करेंगे, निज़ाम ऐसा लेके आएंगे कि इंशाल्लाह बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान का ऊपर आएगा। मुशीर तिजारत के मुताबिक अमेज़न कुछ ही रोज में पाकिस्तान को अपने फरोख्त कुनंदगान यानी सेलर्स की लिस्ट में शामिल करेगा। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री बड़ी देर की काम कर रही थी, ये बहुत बड़ा काम हो गया जो अमेज़न अब पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा। और पाकिस्तानी बरामदात के लिए बड़ा दिन, मेड इन पाकिस्तान 4G मोबाइल फोन्स की मशरक़े वुस्ता बरामद शुरू हो गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 1000 से ज्यादा फ्लैट और 500 मकानात तैयार किए गए हैं। इंशाल्लाह 11 को पहला लॉन्च होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि मुसलसल हम अब अपनी जो हाउसिंग है ये सारे पाकिस्तान के अंदर लेके जाएंगे। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में हमने लॉन्च कर दिया है ब्लू एरिया प्रोजेक्ट, बंडल आइलैंड कराची, रावी सिटी लाहौर। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए तारीखी एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने तामीराती शोबे पर फिक्स टैक्स लगाने और सूबों से मिलकर सेल्स टैक्स कम करने का ऐलान किया। कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तामीरात से मुंसलिक तमाम शोबों पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाने का ऐलान किया। और वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्की सियाहत को फ़रोग़ देने का फैसला। पंजाब में 5 मकामात को बैनुल अक़वामी टूरिस्ट साइट्स बनाने की मंजूरी दे दी गई है। हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, अब दुनिया से डायरेक्टली स्कर्दू टूरिस्ट आया करेंगे। मैं आज आप सबके सामने दावा करता हूँ कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनाना है। अहम खबर आपको दे, 2020 में वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है। कि मेरी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तानियों के राइट्स, उनके हकूक, उनकी इज्जत पहले आएगी। जब आप एक खुददार कौम होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death. And my belief is, la ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूँ, हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? हमने पूरी कोशिश की अपने 3.5 साल में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो। 21-22 के अंदर 6% ग्रोथ रेट। आज इक्तसादी सर्वे जारी किया गया और इक्तसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल जो 30 जून को ख़त्म होगा, पाकिस्तान की मतवक्को जो ग्रोथ की शरह है तकरीबन 6%, 5.97%। एग्रीकल्चर 17 सालों के बाद 4.4% ग्रोथ रेट, 4 बम्पर क्रॉप्स 2 साल में। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 6.2%, ये भी 17 साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी। एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट, पहली दफा इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्टर्स को और उसका नतीजा आया
$31 बिलियन एक्सपोर्ट्स, उनको इंसेंटिवाइज किया आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बैंकिंग चैनल से भेजने के लिए। $31 अरब रेमिटेंसेस, ये भी रिकॉर्ड था। हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा थी, 6.1%। इनके पाकिस्तान की तारीख में टैक्स महसूलात का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। FBR ने 6100 अरब रुपए की नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 6125 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया। और फिर जो सबसे रेलेवेंट चीज है, 55 लाख 3 साल में नई नौकरियां हमने प्रोड्यूस की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि 1999 से 2017 तक होने वाली 290 अरब की वसूलियों के बरक्स नैब ने तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर इक़्तिदार 2018 था 2020 में 484 अरब रुपए वापस निकलवाए। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके सामने हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी क्या हुई, कोविड आ गया। और कोविड से क्या हुआ, जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया कि $70 बैरल से हमारा एक वक्त पे गई $115 बैरल। जो एडिबल ऑयल था, घी था, $780 टन से 1500, यानी दुगना हो गया तकरीबन। कोयला जो था 80 टन से 280 टन पे चला गया। और इसके बावजूद जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 12.2 पे रखा हमने, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो 14% पे हमने रखा मार्च 22 तक। इंटरनेशनली माना गया कि तहरीक इंसाफ ने किस तरह ये सारे चीजों का मुकाबला किया। तो दुनिया क्या कहती है, सबसे पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन इंडेक्स ने मईशत कोविड की बाद बहाली के अदाद शुमार जारी किए। पाकिस्तान पहली तशखीस में तीसरे और दूसरे में नंबर 1 था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोविड के खिलाफ कामयाब पॉलिसीज का एक और आलमी एतराफ सामने आया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्टेबिलिटी डे मनाने का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद मिसाल दी पाकिस्तान की कि जिस तरह इन्होंने इस चैलेंज का मुकाबला किया। आलमी इदारे सेहत की कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। सरबराह WHO ने कहा कि पाकिस्तान ने वबाई बीमारी पर कामयाबी से काबू पाया। वबा के दौरान मईशत के इस्तेहकाम के लिए भी हुकूमत के इक़दामात को सराहा गया।